یہ پارا کی دادی کہتی تھی، بیٹی یہ دنیا طوطا چشموں کی نگری ہے، یہاں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں۔ جب آسرے کی ضرورت ہو تو لوگ منہ موڑ لیتے ہیں، جب کیچڑ اچھالنا ہو یا باتیں بنانی ہو تو سبھی اپنے بن جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ کوئی ٹھوکر کھا کر گر پڑے تو سہارا دے کر اٹھاتے نہیں، اس پر ہنسنے لگتے ہیں۔ آج ماہ پارا پر انگلیاں اٹھانے والے بہت، مگر اس کے سر پر سایہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ سگی بہن بھی نہیں جو نہ جانے کیا سوچ کر اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر 7 سمندر پار چلی گئی تھی، اپنا گھر بسا لیا اور بہن کی خبر نہ لی۔ ماہ جبین مجھ سے 4 سال بڑی تھی، جبکہ ماہ پارا میری ہم عمر تھی، تبھی اس کے ساتھ میری زیادہ دوستی تھی۔ ہمارا مکان ان کے مکان سے ملا ہوا تھا۔ ان کے آنگن میں ایک بڑا سا نیم کا پیڑ تھا جس کے نیچے دادی کا تخت پوش بچھا رہتا تھا۔ اس درخت کی ایک موٹی شاخ میں جھولا بندھا ہوا تھا۔ میں جب ان کے گھر جاتی جھولے پر جا بیٹھتی، ہلکے ہلکے ہلکورے کا مزہ لیتی۔ یہ ہلکورے مجھے خوابوں کی حسین دنیا میں لے جاتے تھے۔ ماہ جبین باشعور تھی، کالج جاتی اور واپس آ کر دادی کے لیے کھانا بناتی۔ فارغ وقت میں کتابیں پڑھنے بیٹھ جاتی۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا، جبکہ ماہ پارا کچھ کھلنڈری طبیعت کی تھی، وہ پڑھائی میں دلچسپی نہ لیتی تھی، سارا دن موبائل پر لگی رہتی۔ دادی منع کرتی تو ان کی بھی ایک نہ سنتی۔ دادی بیچاری اس وجہ سے ہر وقت کڑتی تھی، مجھے کہتی اس کو سمجھاؤ، یہ موبائل فون پر وقت ضائع کرتی رہتی ہے، کسی کی سنتی ہی نہیں۔ آج اگر ان کے ماں باپ زندہ ہوتے تو مجھے ان کی دیکھ بھال میں یوں گھلنا نہ پڑتا۔ کیا کروں کہ ان کا میرے سوا اور میرا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ماہ پارا کے والد ایک بزنس مین تھے، وہ کافی دولت مند تھے، مکان بھی بہت عالی شان بنوایا تھا، جس میں اب یہ دونوں بہنیں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے والد شومی قسمت ایک بار ایبٹ آباد جاتے ہوئے کار کے حادثے میں اپنی بیگم اور بیٹے دانیال کے ساتھ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ وہ دانیال کو اس کے اسکول چھوڑنے جا رہے تھے، جو ان دنوں ایبٹ آباد کی ایک مشہور تعلیمی اکیڈمی میں پڑھتا تھا۔ اب دادی ہی ان دونوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ دادی کو اپنے بیٹے، بہو اور پوتے کے اس جہاں سے سدھار جانے کا بہت دکھ تھا۔ وقت کی کوئی چاپ نہیں ہوتی، بچیاں لڑکپن سے جوانی کی حدود میں داخل ہو گئیں اور دادی اور بوڑھی ہو گئی، مگر وقت کے تیزی سے گزرنے کا کسی کو احساس نہ ہوا۔ دادی کو اب ماہ جبین سے زیادہ ماہ پارا کی فکر کھائے جاتی تھی، کیونکہ وہ لاابالی اور اپنی مرضی کرنے والی لڑکی تھی۔ نتیجہ آیا تو بڑی بہن نے اچھی پوزیشن لی، جبکہ چھوٹی 10ویں میں فیل ہو گئی۔ انسان کو یقیناً اس کی کرنی کا صلہ ملتا ہے۔ جب ماہ پارا نے محنت ہی نہ کی تھی تو اچھا ثمر کیوں کر ملتا۔ ماہ جبین نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ چھوٹی اب اداس تھی، اس نے ہمت ہار دی، دوبارہ 10ویں پڑھنے سے انکار کر دیا۔ امی کے سمجھانے سے وہ پھر سے اسکول جانے لگی، لیکن اس کو اب جونیئر لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے سے شرم محسوس ہوتی تھی۔ اس نے بددل ہو کر اسکول جانا چھوڑ دیا۔ بڑی بہن نے اس کا موبائل فون چھپا دیا تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور گھر کی اشیاء توڑنے پھوڑنے لگی۔ بالآخر فون بہن سے لے لیا، اب یہ فون ہی اس کی دنیا تھی۔ دادی آوازیں دیتی رہتی، وہ جواب نہ دیتی۔ ایک روز غصہ میں دادی نے اس کا فون سیٹ توڑ دیا، تب اس نے اتنا جھگڑا کیا کہ وہ ہانپ گئی۔ شور کی آوازیں ہمارے گھر آنے لگیں۔ امی دوڑتی ہوئی گئیں، وہ بوڑھی دادی سے ہاتھا پائی پر اتر آئی تھی۔ ناچار ان کو اسے نیا فون سیٹ منگوا کر دینا پڑا، گویا کہ اس فون کی خاطر وہ بلا بن جاتی تھی۔ وہ نیٹ پر اپنی پسندیدہ چیزیں اور یوٹیوب فیس بک پر دیکھے بغیر زندہ نہ رہ سکتی تھی۔ یہ تفریح اس کی کمزوری بن گئی تھی، جس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کو اپنے مستقبل کی پرواہ تھی نہ صحت کی، یہاں تک کہ اس نے میری دوستی سے بھی کنارہ کر لیا تھا۔ میں جب اس سے ملنے جاتی وہ مجھ سے تھوڑی سی بات کر کے موبائل پر ہی مصروف ہو جاتی۔ میں دادی سے باتیں کرتی بور ہو جاتی تو واپس آ جاتی۔ اب تو مجھے ماہ پارا کے بغیر جھولا جھولنے میں بھی مزہ نہیں آتا تھا۔ اس طرح نیٹ اور فون کے بے تحاشا استعمال نے مجھ سے ہی نہیں ماہ پارا کو دنیا کی ہر دلچسپی اور ہر رشتے سے دور کر دیا تھا۔ اس کی رنگت سرخ سے سفید پھر زرد ہو گئی۔ ساری رات اس شغل میں جاگتے رہنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ میں تو بچپن سے ان کے گھر جاتی۔ اس کی دادی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، باتیں کرتی، اب دیکھو اس ماہ پارا کا کیا بنے گا۔
नेट से फ़ोन पर रात दिन ज़िंदगी का कीमती वक्त ज़ाया करने से उसका मुस्तकबिल दाव पर लग गया था। पढ़ाई भी छोड़ दी है। मेरे मरने के बाद इस लड़की का क्या होगा? मुझे तो बस अब इसकी फ़िक्र खाई जा रही है। महाजबीन से ज़्यादा महपारा खूबसूरत थी और उसका रिश्ता खाला ज़ात से तय था। उनकी ये खाला लंदन में रहती थी। इस बार जब वो आई उन्हीं के घर ठहरी। उन्होंने दोनों भांजियों के तौर तरीके देखे और छोटी की बजाय बड़ी को बहू बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि ये महपारा तो हर किसी से बेनियाज बल्कि ला ताल्लुक सी हो गई थी। उसको घर घरेस्ती तो क्या, अपने कपड़े बदलने से गफलत थी। ये भी एहसास ना था कि इतने सालों बाद खाला दूर देश से आई हैं, उनको कुछ टाइम और तवज्जो दूँ। ऐसी लड़की को भला कौन बहू बनाना पसंद करता है? खाला ने दादी से कहा कि मुझे महपारा से नहीं बल्कि महजबीन से बेटे की शादी करनी है। बेशक वो ज़्यादा हसीन नहीं है, मगर लायक, सुघड़ और आखिर बाइखलाक तो है, पढ़ी लिखी भी है। दादी ने सोचा कि मैं बूढ़ी हूँ, एक पोती का फ़र्ज़ तो अदा कर लूँगी। जाने कितनी ज़िंदगी है। महपारा को जब होश आएगा तब देखी जाएगी। उन्होंने भी हाँ कर दी। यूँ बड़ी बहन की शादी कर दी गई। इस अमर का भी महपारा के दिल पर कोई असर ना हुआ। वो इतनी बेहिस हो चुकी थी कि उसे एहसास नहीं होता था कि उसने नेट के साथ दोस्ती करके अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। उसे ना अपने नफ़ा और नुकसान का इल्म था और ना मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र थी। खाला अपने बेटे सफदर के साथ महजबीन का निकाह करके चली गई। उससे कहा कि जल्द तुमको लंदन बुलवा लूँगी, वहाँ तालीम हासिल करना, क्योंकि तुम एक होनहार तालिबा हो, तुम्हें आला तालीम का मौका मिलना चाहिए। वो दिन भी आ गया जब महजबीन लंदन जा रही थी। ये पहली बार था जब महपारा की आंखों में आंसू देखे। अम्मी ने उसे गले लगाया। बड़ी बहन उसे तसल्ली देकर चली गई कि फ़िक्र ना करो, मैं तुमको भी जल्द लंदन बुलवा लूँगी। दादी महपारा से ज़्यादा दुखी थी। उसके जाने से बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। अब घर उनको काटने को दौड़ता, कभी अम्मी को और कभी मुझे बुलवा भेजती थी। अम्मी महपारा को बहुत समझाती थी। उन्हीं के समझाने से उसने फिर से स्कूल में दाखिला ले लिया और जूं तूं करके मैट्रिक कर लिया। उसके बाद जिस कॉलेज में दाखिला लिया वो को एजुकेशन था, जहां उसकी दोस्ती एक लड़के से हुई और वो फिर से इंसानों की दुनिया में लौट आई। अब वो थोड़ा बहुत किचन संभालती और घर का सौदा सल्फ भी खुद लाती। सारे काम उसी को करने पड़ते थे, जबकि उसे काम करने की आदत भी ना थी। दादी ने अम्मी से कहा कि कोई एतबार वाली औरत मुलाजमा रखवा दो ताकि महपारा पढ़ने पर ध्यान दे सके। इस तरह एक मुलाजमा का बंदोबस्त भी हो गया। महपारा के वालिद काफ़ी जायदाद और बैंक बैलेंस छोड़ गए थे। दादी को कोई माली परेशानी नहीं थी, अलबत्ता बैंक के काम और जायदाद के किराए वगैरह वसूल करने का काम मेरे वालिद कर दिया करते थे। वो अब्बू के अलावा किसी और पर इन मामलात में एतबार भी नहीं करती थी। तन्हाई बड़ी बुरी शय है। उसने दादी और महपारा दोनों को अलग अलग घुला डाला था। ताहम वो कॉलेज जाती थी। इस तरह बाहर जाने ने उसको काफ़ी दलेर बना दिया था। उसका दिल अब घर में नहीं लगता था। जल्द ही उसकी दोस्ती अयान नामी नौजवान से हो गई। उसको अक्सर अपनी गाड़ी पर घर तक छोड़ने आता था। शुरू में हमने कोई ख्याल ना किया। एक रोज़ मेरे अब्बू ने नोट किया। उन्हें लगा कि ये नौजवान तालिब इल्म नहीं है। वो उनको कुछ ठीक भी ना लगा था। उन्होंने अम्मी से कहा कि तुम उसकी दादी को बताओ, हो सके तो लड़की को भी समझाओ। ये हमारे पुराने हमसाए की बेटी है तो हमारी भी बेटी जैसी है, उसे गलत राह से बचाना चाहिए। अम्मी उनके घर गई। महपारा से पूछा कि ये कौन शख्स है जिसकी गाड़ी में तुम आती हो। वो बोली, बहनोई का करीबी रिश्तेदार है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। आप फिक्र ना करें, कोई लुच्चा लफंगा और ऐसा वैसा लड़का नहीं है। अम्मी ने उसको ऊंच नीच समझाना चाहिए तो सुनी अनसुनी कर दी। बोली, आंटी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं खुद अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। अब्बू अम्मी ने जब देखा कि पानी पल्लू से गुजर चुका है तो उन्होंने मेरा महपारा के घर आना जाना बंद कर दिया। मेरे वालिदैन तो चुप हो गए, मगर कुछ और पड़ोसी खफगी का इजहार करने उनके घर गए तो महपारा मोहतात हो गई। अब वो किसी की गाड़ी पर आती तो घर से दूर ही उतरती थी, बाकी का रास्ता पैदल तय करके घर आती थी। दरअसल 9 उम्री में ज़िंदगी के फैसले खुद करने पड़े और मशवरा देने वाला भी कोई ना हो तो फिर अनहोनी बातों का होना लाजिम है। ऐसा ही कुछ इस बिन माँ की लड़की के साथ हुआ। वो आज़ादी की राह पर चलते चलते कटी पतंग बन गई। वो किसी अजनबी पर अंधे एतमाद की वजह से सीधे रास्ते से भटक गई। फिर जब उसने धोखा खाया तो हर किसी से उसका एतमाद उठ गया। वह मुख्तलिफ मर्दों से मुख्तलिफ औकात में मिलने लगी। दादी समझती कि कॉलेज पढ़ने जाती है, लेकिन वो पढ़ने की बजाय आज़ादी से घूमने फिरने और सैर व तफरीह से तन्हाई का अंधेरा दूर करती रही। कई बार महजबीन का फ़ोन आता, मुझसे भी बात करती, कहती कि महपारा से कहो दिल लगा कर पढ़े, अच्छे नंबर ले।
मैं उसको मज़ीद तालीम के लिए लंदन बुलवा लूँगी। उसको क्या खबर कि उसकी जवान और नादान बहन जिसको वो तनहा कर गई थी, बूढ़ी दादी की आंखों में धूल झोंकती फिरती है। जल्द ही इस करनी का नतीजा सामने आ गया जब एक दिन वो घर आते हुए सड़क पर चकरा कर गिर पड़ी। उसी वक्त उसे अब्बू सौदा सल्फ खरीद कर वापस लौट रहे थे। उन्होंने इसे गिरते देखा तो गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने इंकशाफ किया कि महपारा का पाँव भारी है। ये सुनकर अम्मी अब्बू हैरत ज़दा रह गए। उसे होश आया, घर लाए और उसकी दादी को सूरत हाल से आगाह किया, जिस पर महपारा ने अपना दिफा इस तरह किया कि वो कोर्ट मैरिज कर चुकी है। उसने कुछ इस तरह ज़बान चलाई कि हर किसी को लाजवाब कर दिया। लड़की ऐसी मुंह जोर हो तो कोई कैसे उसकी मदद कर सकता है। अम्मी अब्बू घर आ गए कि कौन पराई आग में जले। शादी ही करनी थी तो हमसे कहती, हम इज्जत से रुखसत करते, मगर मुंह जोर मौजों के आगे किसने बंद बांधा है। उसने ये कहकर अम्मी को लाजवाब कर दिया कि आंटी कोई किसी का नहीं होता, ये सब कहने की बातें हैं। अगर आपसे कहती तो उस वक्त आप लोग ही से ज़्यादा मेरी मुखालफत करते। आप मुझको क्या इज्जत से रुखसत करते, जबकि आपने तो अपनी बेटी को ही मुझसे मिलने से रोक दिया है। गर्ज ऐसी बातें करके उसने अम्मी अब्बू को भी लाजवाब कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जानो, हमको तो तुम्हारे मरहूम वालदैन का लिहाज है और बेचारी बूढ़ी दादी का। उसके बाद मेरे वालदैन ने चुप साध ली। खुदा जाने कैसे महपारा ने अपना मसला आप हल किया था। दादी को तो ऐसा दुख लगा कि बेचारी इस वाक़ये के 2 माह बाद ही अल्लाह को प्यारी हो गई। यह आखिरी मौका था जब मेरे घर वाले उनके घर गए। उसके बाद किसी ने उनके घर कदम न रखा। उसकी दादी की तदफीन के रोज़ मोहल्ले की एक औरत ने कहा, बेटी महपारा, अब तुम अकेली कैसे रहोगी। उसने बदतमीज़ी से जवाब दिया कि एक बूढ़ी औरत भला क्या मेरी रखवाली कर सकती थी, बल्कि मुझे ही उनकी रखवाली करना पड़ती थी। मैं तो तब भी तन्हा थी, अब भी हूँ। मुलाजमा और चौकीदार हैं, आप लोग मेरी फ़िक्र मत करें। यूँ उसने मोहल्ले वालों की हमदर्दी को भी कबूल न किया, जैसे वो इस सारी दुनिया को आजमा चुकी हो। दादी की वफ़ात के 1 माह बाद तक वो घर में रही। उस दौरान वो बहुत कम निकली। एक रोज़ ताला लगाकर चली गई और फिर ना लौटी। चंद दिन मोहल्ले में उसके बारे में बातें होती रहीं, फिर हर किसी ने उसे भुला दिया। किसी ने ये ना सोचा कि एक नौजवान, खूबसूरत, कमसिन और लावारिस लड़की जिसका कोई अपना पास नहीं है, वो कहाँ गई होगी और उसका क्या बना होगा। मुझे ज़्यादा गिला तो बाजी महजबीन से था कि वो लंदन जाकर 5 बरस बाद भी ना लौटी। सगी बहन को अकेला छोड़ दिया। हमने फ़ोन पर उनको दादी की वफ़ात की इत्तला भी दी, वो नहीं आ पाई। ज़माने का दिल तो पत्थर का होता ही है, क्या उनका दिल भी पत्थर का हो गया। अपने मुस्तकबिल की खातिर दूर देश जाकर सगी बहन को भुला दिया। और एक ऐसी खाला थी कि एक भांजी को तो मोती की तरह चुनकर गले का हार बना लिया और दूसरी को कंकर जानकर छोड़ दिया। दुनिया लाख महपारा को बुरा कहे, लेकिन मैं उसके हालात को भी दोष देती हूँ। मेरे दिल में अब भी उसके लिए हमदर्दी का एक गोशा मौजूद है। मैं उसको तलाश ना कर सकती, मगर दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो सलामत हो, महफूज हो और खुश हो। ज़िंदगी रही तो हम किसी ना किसी मोड़ पर मिल ही जाएंगे कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।